तो जब भी उनके साथ एग्रीमेंट साइन करोगे आप स्टार्टअप्स के लिए, वो थोड़ा सोच के करिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप आपकी कंपनी बनाओ एंड 4 साल के बाद 5 साल के बाद सारे इन्वेस्टर मिलके आपको बाय बाय कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर आपके पास आ रहे हैं वो आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, डेफिनेटली विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। Hello, hi, Kasakai, and I hope you all are doing fantastic. Ladies and gentlemen, नया दिन, नई शुरुआत, नई सोच, नया podcast. Ladies and gentlemen, welcome to your very own show, Visionary Voices. I am your host, Simran Patwa, and join me as I welcome our guest who has made significant contribution in various fields. To name a few, food and beverages, investments, telecom, and fintech. Ladies and gentlemen, our guest is an investor and industrialist known for his extensive contributions to various sectors, including telecom, fintech, and aviation. As the chairman of Black Hat Syndicus and multiple other ventures, he has a diverse portfolio of over 104 companies. He's pioneered innovations such as QR code POS machines in India and founded OTMSPL, Automax Teleserve Private Limited. Ladies and gentlemen, the country's largest money transfer company. He holds a PhD in business managerial economics from the University of Mumbai and has received accolades. Ladies and gentlemen, he was also very recently awarded in 2022 as the most promising entrepreneur of the year. He holds a PhD in business managerial economics from the University of Mumbai and has received various accolades. Ladies and gentlemen, he was awarded as the most promising entrepreneur of the year 2022. Ladies and gentlemen, by none other than the 14th President of India, Honorable Ram Nath Kovind sir. Ladies and gentlemen, चलिए स्वागत करते हैं हमारे अगले गेस्ट का, none other than Dr. Sachin Salukhe. Thank you, Simran, for calling this wonderful show. I'm good. How are you? Very well, sir. Thank you very much, and thank you for coming to Visionary Voices. How is the feeling? कैसा लग रहा है आपको? It's definitely the great feeling to participate to in Visionary Voices. क्या बात है? Yes. Great, great, great. तो जैसे कि I'm sure कि you've been to various other podcast channel or maybe you've been to many other obviously interviews. कैसा लग रहा है आपको Visionary Voices में? कभी आपको लगा था कि आप विजनरी वॉइसेस में आएंगे? हाउ इज द फीलिंग? नहीं, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आऊंगा, और डेफिनेटली ये यहाँ पे इनविटेशन मिलना है एंड अगेन पार्टिसिपेट करना कुछ अलग ही बात है. No, we are equally grateful. Thank you very much. Right. Sir, we'll start with your journey. Right. तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कैसे हुआ ये? How did you started? And what all challenges you faced in your career? Please. So definitely, like I work in many ventures, right. And basically, so most significant, most important companies and venture of my life is a fintech. Right. So because when you change the people's life right. with the help of technology and your innovation, correct, definitely it feels good. So it is a time of 2012-13, okay. Around. So that time. When I came back from the Singapore back to India, okay. and again I starting something new. So wherever I found, because I am from the banking background, I worked okay. for the Federal Reserve, Citibank for okay. almost 4 years. In that time I take care of the global payment platform, global remittance platform. Okay. I was working as a VP over there. Okay. So when I come back to India and while traveling down road, so I feel lot of things. The morning times very huge rush outside the SBI, State right. Bank of India. I didn't understand, like 6:30 हो रहे, 7 o'clock है और कम से कम वहाँ पे 400-500 लोगों का रश है. Okay. So I went there and asked couple of people कि तुम इधर 7:30 बजे इतना जल्दी क्या कर रहे हो? शाम में? Morning में. Yes, अच्छा. Early morning. So they said नहीं हमको गांव में हमारा पैसा भेजना है. We are a migrant labor और हमको गांव में पैसा भेजना है, तो इसके लिए हम लोग डिपॉजिट करने लाइन लगाने यहाँ पे आए. Okay.
It's all about the 2011-12 Acha, kind of. this Yeah, was that's it. 2012. Yeah, 12 Acha, years okay. back. So couple of people says कि हम लोग यहाँ पे लाइन लगाते हैं because we are migrant laborers and जो भी 4-5 दिन का हमारा कलेक्शंस होता है Okay. वो फिर कोई चोरी कर लेगा या कुछ हो जाएगा, इससे बेटर कि हम लोग हमारे गांव में भेज देते हैं. सो मैंने बोला दूसरा कोई चांस नहीं है. बोलते नहीं, मनी ऑर्डर में चार्जेस लगते हैं, ये दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डिपॉजिट मनी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. छोटे मोटे चार्जेस है वहाँ पे. Okay. वेरी गुड. फिर आप क्या करते हो? बोलते लेकिन यहाँ पे हमको दिक्कत तो होती है क्योंकि Right. 6 दिन 4 दिन काम करो, 2 दिन तो डिपॉजिट में पैसे चले जाएंगे. बिल्कुल. So then I spoke with my one of friend who is working with the RBI. Then I spoke with the Axis Bank of India कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, कैसा क्या है. Then they told me सचिन आइदर रेमिटर और बेनिफिशियरी में जो पैसा भेजने वाला है या रिसीव करना है, दोनों में से एक कंप्लायंट होना चाहिए आरबीआई के पास. सो मैंने बोला जिसको पैसा भेज रहे वो तो कंप्लायंट है, फिर जो जिसको मिल रहा है पैसा राइट, तो अभी भेजने वाला क्यों कंप्लायंट चाहिए? बोलते हमको नहीं चाहिए, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं. देन वी थिंक ऑन इट, देन वी अप्रोच आरबीआई. देन उन्होंने बोला कि यू कैन स्टार्ट विद एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में दैट टाइम वी ओपनड अराउंड फिक्स डिपॉजिट ऑफ 100 करोड़ एंड दे अलॉट अ लिमिट ऑफ 80 करोड़. जैसे 80 करोड़ आप यूज कर सकते हो. एंड वी कनेक्ट द एक्सिस बैंक एपीआई विथ आवर सिस्टम्स. और जो हमारे एग्जिस्टिंग नेटवर्क थे, जो रिचार्ज मोबाइल रिचार्ज करते थे, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने उनको कनेक्ट किया. ये सिंपल था. कस्टमर हमारे पास आता था शॉप पे, वी टेक द बेसिक्स ओटीपी एंड ऑल वेरिफिकेशंस एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो पैसा पहुंच जाता था. ओह ग्रेट. ये एक्सरसाइज हमने 3-4 महीने किया. वी रीच अ टर्नओवर ऑफ मंथली 400 करोड़ आसपास. एंड देयर वी चार्ज हमने 10,000 के ऊपर 100 रुपीज 120 रुपीज, विच इज अ थिन मार्जिन, पेपर मार्जिन, बट डेफिनेटली इट रिजॉल्व यू लॉट ऑफ थिंग्स, रिजॉल्व यू लॉट ऑफ इशू. एसबीआई की बाहर की लाइंस कम होगी. एसबीआई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. उनने भी उनके कियोस्क देना चालू किए. दैट टाइम दे कॉल दैट एज एसबीआई सेवा केंद्र. सो काफ़ी मुंबई में या अदर महाराष्ट्र में, अदर सिटीज़ में उनके अभी भी हैं सेवा केंद्र. उन्हें चालू कर दिए. दे ऑथोराइज 1 पर्सन टू टेक द डिपॉजिट, सेंड द मनी, डू द ट्रांजैक्शंस. सो ये काफ़ी ईजी हो गया. बैंक्स के ऊपर जो प्रेशर था सबसे मॉर्निंग का कि कैश लो, काउंट करो, उसको कैरी करो, वो पूरा वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, जीरो हो गया वहाँ पे. So that was very proud moment for us कि we make these changes, we revolutionize such kind of changes which help people lives. And next time से उनका ऐसा ज़रूरत नहीं था. वो कभी भी सुबह शाम, मॉर्निंग 6 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे, कभी भी मेरे कोई भी नेटवर्क शॉप पे वो लोग जाते थे, पैसा देते थे, इमीडिएटली उनका पैसा पहुंच जाता था. तो उनको कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही उनको किसी को पैसे देने की ज़रूरत थी. सो ये फिनटेक में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन हमने तभी किया था. Great. Sir, you have been a pioneer in multiple sectors, including telecom, fintech. You were, inside talking about fintech. How, well people understood when you actually shot the last video. And also when it comes to aviation. Correct. Among all your ventures, sir, which achievement are you most proud of and why? Yeah, again, I want to tell you, I want to repeat some sentence. I'm happy with the fintech things. Okay. Because definitely everybody is doing the business. Right. सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं. Right. बट जब भी लोगों की लाइफ चेंज होती है आपके टेक्नोलॉजी इनोवेशन की वजह से, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है. Right. ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, बेचा, पैसा कमाया, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाया, बेचा, पैसा कमाया. Right. बट लोगों के लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा? हमने ये सोचा फिनटेक की वजह से हमने लोगों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाए हमने. बिकॉज ऑफ अस वी स्टार्टेड डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस, जो कि पहला था नहीं. एक्सिस बैंक के बाद सारे बैंकों ने चालू किया, ईपीएस डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, उसके वाइट लेबल्स देना लोगों ने चालू किया. एंड ये रेवोल्यूशन पूरे इंडिया तक पहुंच गया. और इसके वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो बैंक्स में जाने का जो एक डिपेंडेबिलिटी लोगों का था वो जीरो हो गया. सेकेंड मोस्ट थिंग फिनटेक, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है कि 2016 में जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने जब भी डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, तभी काफ़ी डिफ़िकल्टीज लोगों को आने लगी. लोगों ने कहा इंडिया में जब भी डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ 60 दिन में नए नोट्स वगैरह आने वाले थे. लोगों ने मोदी जी से पूछा सर हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमको पैसा विड्रॉ करना है. मोदी जी ने बोला आप जाओ और एटीएम से विड्रॉ करो. सो इंडिया के ऐसे कुछ स्टेट थे वहाँ पे हार्डली कोई एटीएम था. तो मोदी जी ने बोला कि फिर किसी के पास पॉस मशीन वगैरह होगा, तो पॉस मशीन का भी उतने ज़्यादा नहीं थे.
That time we come with the one proposal to the RBI and Right. the government and the banks कि सर जिसके पास भी पॉस मशीन्स है Okay. जो पॉइंट ऑफ सेल उसको बोला जाता है उसमें एक सेल मोड होता है वी कैन चेंज योर SDK Right. जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है हम लोग उसको चेंज करेंगे Okay. और उसको एक कैश एट पॉस या माइक्रो टीम वाला हम लोग टूल इंसर्ट करेंगे जो भी कस्टमर वहाँ पे जाएगा अगर कोई कपड़े का दुकान है और उसके दिन भर का कलेक्शन 10,000 रुपये है Okay. और वहाँ पे अगर उसने लिख दिया कैश अवेलेबल हियर Okay. और मैं वहाँ पे चला गया मुझे कहीं ATM नहीं मिला हाँ. तो मैं उसको मेरा कार्ड सिर्फ स्वाइप करूँगा Right. एंड वो इमीडिएटली मुझे कैश हैंड ओवर करेगा Correct. और उसको दुकानदार को उसके ऊपर इंसेंटिव्स मिलेंगे जैसे 2% 5%। Correct. तो इसको कैश एट पॉस बोला जाता है या माइक्रो एटीएम बोला जाता है। Correct. 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था। Correct. ये भी फिनटेक में काफ़ी हमारा सक्सेसफुल हुआ Right. एंड जहाँ पे एटीएम की ज़रूरत वो काफ़ी कम थी और हाईएस्ट कुछ छोटे मोटे एटीएम से वहाँ पे सारे लोग पॉस यूज़ करने लगे और पॉस की वजह से एटीएम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। Right. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई कि जो उस लाइक अर्बन एरियाज में जो पेट्रोल पंप्स है तो पेट्रोल पंप का क्या होता है कि आपको दिन भर की कैश जमा करके आपको जाके बैंक में डिपॉजिट करनी है। Right. दिन भर का एवरीडे का काम है पेट्रोल पंप का। तो इसमें क्या किया हमने वहाँ पे भी एटीएम इंस्टॉल किए, वहाँ पे वाइट लेबल एटीएम इंस्टॉल किए। तो पेट्रोल पंप का काम था कि दिन भर की कैश जमा करके वो एटीएम इंस्टॉल आप डिपॉजिट कर दो, लोग आके जितने भी चाहिए विड्रॉ करेंगे। Okay. अभी यहाँ से पेट्रोल पंप से बैंक जाने का उनका हेडेक वहाँ पे ज़ीरो हो गया। Okay. फिर पैसा कभी चोरी हो जाता या कुछ भी अटैक हो जाता किसी के ऊपर। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी रूरल एरिया। Okay. Okay. सो ये सारी चीज़ें ये सारे प्रॉब्लम्स हमने एलिमिनेट किए एंड आई ऑलवेज प्राउड ऑन मी कि हमने फिनटेक में काफ़ी चीज़ें नहीं लाई Right. एंड वो लोगों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए उसकी Right. वजह से। Right. Sir, I just want to understand that just now you just said ki, you know, we had installed loads and loads of ATMs. Also, we went to these, you know, as in the small store. Small people. stores. Yeah, Correct, right. yes. And we went to them. We asked them to keep some cash. You know, people are going to come, give their cashes. So could you just tell us that कितने आपने ऐसे अगर आप बताना चाहेंगे तो इंस्टॉल किया आपने ATM या कितने लोगों Yeah. को So- और कहाँ? यस डेफिनेटली हमने नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा एटीएम इंस्टॉल किए थे, माइक्रो एटीएम्स। Okay. काफ़ी सारे कंपनियों ने हमको इसके लिए सपोर्ट भी किया था। Nice. सो अराउंड हमने इनिशियल फेज में 2.5 लाख एटीएम्स वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। Oh wow. एटीएम्स भी नथिंग बट द बिग मशीन, इट्स अ स्मॉल मशीन्स। Okay. आपके जो एग्जिस्टिंग आप सेल के लिए जो मशीन यूज Okay. करते हैं Okay. उसके अंदर हम लोग हमारा SDK इन्वॉल्व करते हैं। Correct. SDK स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट Okay. एंड वहाँ से वो मशीन इनेबल हो जाती है Right. कि वो अगर सेल में ही हम ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको GST एप्लीकेबल होगा। Correct. अगर कैश एट पॉस या माइक्रो एटीएम में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे हम्म। आपको कोई GST एप्लीकेबल वहाँ पे नहीं होता है। सो ये काफ़ी हमने सक्सेसफुली ये काम किया। Great, sir. Great, Thank great. you. What has been your primary source of inspiration and motivation throughout your entrepreneurial journey? And how do you stay driven to achieve your goals or anything that you ever wanted? Do you think that ho raha hai? Is it working for you? या डेफिनेटली सो प्राइमरी लाइक जहाँ से इंस्पिरेशन हमको मिलता है Right. ऑल डेफिनेटली योर पेरेंट्स यू गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम Absolutely, यू absolutely. You look up to एंड them. यस एंड डेफिनेटली आप जो काम कर रहे हो डिलीवर हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, Correct, लोगों को फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ से भी इंस्पिरेशन हमको काफ़ी मिलता है correct. कि हम जो कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, बराबर जा रहा है, सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है एंड वो उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। Correct. जब डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस हमने चालू किया और सक्सेसफुली काफ़ी जगह तक पहुंच गया, All right. तभी मैं लोगों से मिलता था, तभी लोग बोलते थे अरे सचिन जी आपका तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, Okay. आपके वजह से हमको 7 बजे उठना नहीं पड़ता है, हम लोग कहीं पे भी जाकर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं Yes. और बैंकिंग हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया है। बिल्कुल. सो ये सारी चीज़ें अभी कोई आपको बोलता है और उसके अलावा कि जैसे कि बिजनेस के अंदर आपके काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोशल एलिमेंट्स है, Okay. गवर्नमेंट इस टाइप ऑफ एलिमेंट है, Right. पर जब भी आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अप्रिशिएट करता है किसी चीज़ के लिए, सो वहाँ से भी आपको काफ़ी मोटिवेशंस मिलता है और आपको कुछ और करने की इच्छा आपकी होती है Right. कि मैं और इतना किया तो मैं और भी अच्छा कुछ Right. करूँगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑल इंस्पिरेशन Inspira- comes हाँ, from you. correct, great. Sir, I'm sure that it's not always, you know, possible to always have a positive or to always have, you know, success in your life.
sometimes you also fear, Correct, right? correct. Now my lots of listeners wants to know कि चलो success story तो we know Yeah, about understood. everybody, but what about the failures? How do you deal with it? Any instance of you know, where you faced a significant failure or setback, and how did you overcome it to eventually find success? So definitely I can explain. So when we first start the recharge concept in India, Okay. that time almost in India there are 16 mobile companies and 6 DTH companies. Right. So everybody don't want to maintain the number of mobile phones. I'm talking about the mobile shops, Okay. shopkeepers. So that time we introduced single SIM card to multiple recharge concept. Okay. So you are just like normal scenario. वो जो शॉपकीपर होता है वो 16-17 फोन्स रखता है. यू जस्ट अगर आप जाओगे तो एक फ़ोन उठाएगा, आप बोलोगे एयरटेल का करना है तो एयरटेल Right. का उठाएगा, वोडाफोन बोलोगे तो एक Right. वोडाफोन का Right. उठाएगा. सो इसमें क्या था तभी कि उनको मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स रखने पड़ते. Right. सो जो उनकी कॉस्टिंग थी वो मोबाइल फ़ोन की 1,000 रुपये का अगर हमने एक काउंट किया मोबाइल फ़ोन, Okay. तो 16,000 प्लस 6 22,000 हो गए. एवरी मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको एक डेमो कार्ड रखना पड़ता था. Okay. यस, उसकी कॉस्ट 1,000 रुपये थी. Okay. एंड आप कोई ज्योतिषी नहीं हो, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज मेरे पास कौन सा कस्टमर आने वाला है. Correct. Correct. सो आप सारे मोबाइल सर्विसेज में आप स्टॉक रखोगे, किसी में 10,000, 5,000, 20,000. Correct. Correct. अगर आपने आइडिया के फ़ोन में 20,000 का स्टॉक रखा और दिन भर आइडिया का कस्टमर आया नहीं, तो आपके लिए लॉस है और आपका पैसा ब्लॉक हो गया. Correct. सो इसके ओवरकम करने के लिए हमने ऑटोमैक्स जो फर्स्ट ओरिजिनल टॉपअप मशीन्स हमने लॉन्च की, Right. और उसके वजह से लोगों का काफ़ी हेल्प हुई. Right. एंड एवरीबडी इज हैप्पी कि एक मोबाइल फ़ोन सचिन जी कंपनी का ले लो, Right. उससे सारे रिचार्ज करो, Right. और अपने को हमको कोई भी स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है Okay. या कोई डेमो कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है. Okay. तो ये एक काफ़ी लोगों का हमने इशू सॉल्व किया. Correct. अभी टॉक अबाउट द फेलियर, हमको काफ़ी फेम मिला, पैसे मिले, Right. पॉपुलर हुए, हमारा एजेंट का नेटवर्क बढ़ा. Right. 2014 के बाद 2G स्पेक्ट्रम के सारे काफ़ी इशू है. ये 16 मोबाइल कंपनी से 4 हो गई सीधा. Oh. यस. एंड इनके काफ़ी चीज़ें सेंट्रलाइज हुई. Okay. यस. तो वहाँ पे वो लोगों ने APIs देना बंद कर दिया एंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ओपन करना बंद कर दिया. वी ऑल आर हेल्पलेस बिकॉज एंड कमीशंस काफ़ी कम हो गए. सो अराउंड जब भी आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 करोड़ से और आप उसमें 2 करोड़ महीने का कमा रहे हो, सडनली वो 2 करोड़ पर आ जाएगा तो आप कमाओगे 2 लाख रुपए. तो आपको स्टाफ मेंटेन करना है, ऑफिस मेंटेन करना है. सो उस टाइम पे वो सेटबैक था हमारी भी. Correct. एंड उसका ओवरकम के लिए हमने काफ़ी सोचा, खुद को Right. पेशेंस रखा कि हमको कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं करना है. कि लोगों ने पूछा, मेरे कुछ पार्टनर्स ने मेरे को Right. कभी पूछा था, एम्प्लॉय ने, कि हम लोग बंद कर रहे हैं क्या, हम लोग Correct. क्या करेंगे आगे. कुछ तो मेरे साथ जो छोड़ के भी चले गए मुझे कभी. Right. Right. बट हमने इसके ऊपर 6-8 महीने काफ़ी सोचा एंड फिर देन वी लॉन्च मनी ट्रांसफ़र. और Okay. वही नेटवर्क हमने यूज़ किया बाद में. Okay. एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू माई डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, Right. मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. दे ऑलवेज विथ मी. अच्छा. एंड तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, Okay. या जो भी नए बिजनेस में आते हो. फेलियर तो आते रहेंगे, Right. सेटबैक्स तो आते रहेंगे आपको, फ्यूचर में भी काफ़ी टाइम आएंगे आपको. Correct. आपको वो नॉर्मल देखो क्या कि जैसे हम बोला जाता है कि वक्त बड़ा बलवान है. Correct. तो जैसे ही वक्त आगे जाएगा आपकी इशू भी सॉल्व होगी. आपको बिल्कुल. सिर्फ शांत काम रहना है बिल्कुल. और प्रोसेस फॉलो करनी है आपको, Correct. सक्सेस आपको मिलेगा. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी जो लाइफस्टाइल है आप खुद कंट्रोल कीजिए. जैसे कि आपने कोई कंपनी चालू कर दी, इमीडिएटली आप मर्सिडीज में जाओगे, Correct. आपके एवरी डे के एक्सपेंसेस 50,000 हो जाएंगे. Correct. बट अगर कुछ शेक ऑफ हो गया आपका बिजनेस, Correct. तो ये मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा. Okay. तो डेफिनेटली ट्राई करो कि हाँ आप ग्राउंडेड रहो. Correct. कभी ऊपर जाओगे नीचे जाओगे आपको कोई Correct. फर्क नहीं पड़ेगा. Correct. यस. Right. अभी आपने जस्ट कहा कि I'd like to give a piece of advice to all the listeners and to all the youth. I want to know that what has been your specific mantra. आपका मंत्र क्या है? You know, to always be positive and to always, you know, excel in Yeah. everything that you're doing. Please share with So all of us. definitely, so right now this year I'm going to turn 34, right? Okay. And if I want to give the like younger Sachin Salunke at the age of 24, what the advice I want to, I want to go back in times. Okay. एंड जब भी सचिन सालुंके 24 साल के थे, उनको अगर मुझे कुछ एडवाइस देनी बैक जाके, हाँ प्लीज. सो उस पर मैं देना चाहूँगा कि आप जिस पे भरोसा कर रहे हो ज़रा सोच के करो. क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर भी काफ़ी लोगों ने मेरी स्किल सीख के या इंफॉर्मेशन लेके
मेरे कंपनी को कॉपी करने की कोशिश की, तभी वो मेरे को सेटबैक काफ़ी हुए। सेकेंड थिंग्स, अभी जो इंडिया में या अक्रॉस दी वर्ल्ड स्टार्टअप का जो एरा चालू है, सब लोग वैल्यूएशन के पीछे भागते हैं। 2 बिलियन का वैल्यूएशन, 3 बिलियन का वैल्यूएशन, आए दिन नई कंपनीज आ रही है। कुछ सोचते नहीं हम लोग, कोई भी एलपी है, लिमिटेड पार्टनर है, वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी को हम लोग रेड कार्पेट दे रहे हैं। वो आ रहा है, पैसा डाल रहा है, आपके 60-70% स्टेक ले रहा है, बट आप समझ नहीं रहे हो कि आप खुद के ब्रेन के ऊपर वो कंपनी बना रहे हो, और आपकी जो कंपनी है उस पर अंदर आप एम्प्लॉय हो जाओगे अगर आपका स्टेक 50% से नीचे चला जाएगा। सो कोई यूज़ नहीं है। तो मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टार्टअप चालू कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो सोच के कीजिए। सेकेंड थिंग, जो इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है वो आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा, डेफिनेटली विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। तो जब भी उनके साथ एग्रीमेंट साइंस करोगे आप स्टार्टअप्स के लिए, वो थोड़ा सोच के करिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी कंपनी बनाओ एंड 4 साल के बाद 5 साल के बाद सारे इन्वेस्टर मिलके आपको बाय बाय कर दे। राइट। तो आपने इतना एफर्ट्स करके, इतना सोच के, इतना बड़ा इनोवेशन किया, कुछ का फ़ायदा नहीं है। सो ये डेफिनेटली एडवाइस मैं यंगर सचिन सालुंके एंड ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहूँगा। Right, great, sir, great. Also, sir, that you are, into various fields, as we already talked about it. I mean, you're into telecom, you're into fintech, you're into food and beverages also. But all the youngsters, everybody who's listening to this podcast wants to know that how do you balance all of this? As in, how you prioritize your time and resources across multiple ventures? So definitely, I love to answer these questions. So currently, nowadays, I'm focusing on my Black Hats Indicas, which is like a cross-border company, investment company. We have a presence in Singapore, we have a presence in India, we have a presence in Indonesia, and we have successfully presence. So mostly people look at the Black Hat as a influential people, syndicate of influential people who can solve your any issue, cross-border issue. Right. So currently I'm focused on this, and definitely again my second priority nowadays it is a Coffee and More, is the company which is founded by my wife Shweta Salunke, and that company is going very good, and we are expanding in many countries. Okay. So whenever you are handling multiple ventures, so definitely who are your horse, you have to decide. Okay. And जो भी पर्सन पे आप बेट लगा रहे हो, जो आपको पूरा वेंचर हैंडल कर रहा है, Right. उस पर आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी बात, वो उतना कैपेबल होना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे तो कंपनीज तो हर जगह पे चालू है। Correct. मेरा फूड वेंचर्स चालू है, एविएशन में एक्टिविटी हो रही है, फिनटेक में काम हो रहा है। क्यों काम हो रहा है और इतना आराम से मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? कि मुझे बैकएंड में मेरी जो टीम काम कर रही है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। सो डेफिनेटली आपको, अगर आप मल्टीपल वेंचर्स में काम कर रहे हो तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कितने भी वेंचर्स बनाओ, आपको सक्सेसफुली आपके वेंचर्स सारे चलेंगे। राइट, राइट। सर, अभी जस्ट आपने हाईलाइट किया, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ऐसा कहते हैं कि हर मर्द के सक्सेस के पीछे उनकी एक वाइफ का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है। आपने जैसे कि कहा कि श्वेता मैम का भी अभी खुद का कंपनी है, कॉफ़ी एंड मोर, इट्स गोइंग ग्रेट एंड it is doing wonders in the market. We just want to understand that you are inspired by her or she is inspired by you, or how is it, please tell us. So actually we both inspire by each other. Oh, great. Yeah. And when you talk about the inspiration, definitely my mom, dad plays a very important role in my life. Right. My father Chandrakant Salunke and my mother Lakshmi Salunke plays a very important role. Okay. And they are also first inspiration in my life. Definitely after that, in my business journey, my entrepreneur journey, Shweta plays a very important role. Wow. She always back me, she always with me, and Very nice. डेफिनेटली काफ़ी जगह पे हमको देखा कि फॉर्मेलिटीज लोग करते हैं, कि जिस वाइफ का नाम ऐड करके या वाइफ को सीईओ बना के कोई और काम करेगा, बट उनकी वाइफ का नाम होता है एमडी होती है। इन माय केस इज नॉट लाइक दैट। शी एक्चुअली वर्किंग ऑन ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, जितना उसको कैपेबल है, जितना सक्सेसफुली कर सकती है। उसके कभी कभी उसके काफ़ी डिसीजन ब्लंट होते हैं, बट वो काफ़ी सक्सेसफुली होते हैं। मुझे भी लगता है अरे हम लोग ये क्या कर रहे हैं यार, 2-3 महीना हो गए तुमने ये डिसीजन लिए, ये वो काम करेगा नहीं करेगा, बट 4 महीने के बाद पता चलता है उसका डिसीजन काफ़ी राइट था। सो ऑलवेज आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि उनकी जो लाइफ पार्टनर्स है तो उनको भी इक्वली आप पार्टिसिपेट कीजिए, अगर आप सेम प्रोफेशन से हो। एंड डेफिनेटली वुमेन्स आर गोइंग अहेड,
and बिल्कुल, we have to like give them the equal rights correct, in every sense. right. Yes. So that is your thought, Yeah. right? And you think that also many people or many men out there should have this thought. Definitely. Huh? Okay, great, sir. Moving ahead, how do you view the role of innovation in driving business success? And what steps do you take to foster a culture of innovation with your company, as you just said? Yeah. So definitely, when I talk about the innovation, so definitely innovation linked to the peoples and innovation linked to the environment, innovation linked to the your society. Right, If you cannot change the things, you cannot materialize the things, तो no use of that innovation. So Right. definitely अभी भी हमारे काफ़ी इनोवेशन चालू है, जैसे कि डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस के बाद काफ़ी सारे प्लेयर मार्केट में आ Okay. गए एंड दे आर चार्जिंग ह्यूज मनी, चार्जिंग ह्यूज फीस टू पीपल्स. सो दैट टाइम वी लॉन्च किंग्स एंड क्वीन कार्ड्स. right, सो वो एक काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशनल डिसीजन था हमारी कंपनी का. एंड जब तक जैसे कि लोग बोलते कि नहीं ये ऐसा शूज़ है, नहीं तो मैंने थोड़ा ऐसा क्रॉस वाला शूज़ बना दिया. correct. दिस इज माई इनोवेशन. बट मुझे मेरा कहना है कि डेफिनेटली दैट इज अ कम टू द आल्सो काउंट एज अ फैशन. Right, बट उससे लोगों को क्या हेल्प मिली, कोई right, क्वेश्चंस मिला या किसी का पैर का कोई इशू सॉल्व हुआ. right. तो इनोवेशंस आई फील कि लोगों के लाइफ में कोई बड़ा चेंज आना चाहिए. What kind of legacy do you hope to leave behind? Or what change you're expecting in the society? And how do you aim to contribute positively to society and future generations? So definitely, I want to answer this question. I love to answer this question. So, like legacy, whenever I request to all the entrepreneurs, I request to all the who are the business peoples, Okay. कि उनके पास कनेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, Okay. कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनके पास, बट वो लोग अपने कॉन्टैक्ट्स दूसरों के लिए कभी यूज़ नहीं करते. नहीं करते. Okay. सो वो सबसे बड़ा चेंजेस है, वो सबसे वह दूसरों को मैं उससे डिफरेंट मेरी थॉट प्रोसेस है वहाँ पे. Right. मैं मेरे कॉन्टैक्ट्स हर जगह यूज़ करता हूँ. Great. कोई मेरे लिए आता है कि सचिन तो इंडोनेशिया में तुम्हारे कॉन्टैक्ट अच्छे है, मेरा एक रिलेटिव है उसको एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया ऑन अ पॉजिटिव थॉट्स, तो कुछ कर सकते क्या. या मेरा कोई रिलेटिव है उसका वीज़ा अटक गया, यूएस में जा रहा है, Okay. वहाँ पे कोई तेरी पहचान है क्या. Right. सो इस मामले में मैं काफ़ी लोगों को हेल्प करता हूँ. अराउंड कोविड में भी काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प की थी. Okay. अराउंड वी हेल्प मोर देन 9,000 पीपल. एंड इस जो भी ये सोशल कॉज के लिए हम लोग काम करते हैं, इसकी मैं या मेरी कोई कंपनी इनकैशमेंट नहीं लेती. इसमें हमने कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं किया है या इसका कोई रिबेट हम लोग गवर्नमेंट से नहीं लेते कि हमने इतने लोगों की हेल्प की है, Right. क्योंकि ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा फिर. Right. सो मुझे ये बोलना है कि हर बिजनेस में अगर ऐसा पॉजिटिव सोचे कि नहीं मैं ये करके जाऊंगा, क्योंकि Correct. लाइफ तो आपकी 60, 70, 80 ईयर्स की लाइफ है. बिल्कुल, बिल्कुल. बाद में लोग कैसे याद करेंगे आपको, अरे Right. नहीं ये ऐसा था, इसने मुझे एडमिशन दिलवाया, Correct. इसने वीज़ा का मेरा काम. ये छोटी छोटी चीज़ है, बट आप ट्राई तो करो. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ बड़ा करो, आप छोटे से तो चालू करो. Right. हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली लोग अगर गाड़ी से भी पास हो रहे हैं, 2 लोग बैठे पीछे 4 सीट खाली है, बिल्कुल, तो भी किसी को लिफ्ट नहीं देंगे. बिल्कुल. पूछेंगे उसको तू मुंबई जा रहा है, हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ. हाँ. हाँ ठीक है मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, बट उसको बोलेंगे नहीं तू मेरे साथ बैठ. Right. तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें से अगर हम लोग चालू करेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी में काफ़ी बड़ा चीज़ आ सकता है. Right. एंड जिस हिसाब से ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम अच्छी तरह से फैल रहा है और इंडिया इज़ ग्रोइंग, Right. सो ये सोसाइटी के जो चेंजेस है वो हमारे भारत के लिए, नए हिंदुस्तान के लिए Right. काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे. एंड डेफिनेटली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो डेफिनेटली हम सारे एंटरप्रीनर्स बिजनेसमैन मिलके ये सपना ज़रूर पूरा करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल सर. कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, समवेयर जैसे कि आपने जस्ट अभी कहा दैट if there's people in a car or they are traveling to somewhere, if they ask you that are you going to this place, maybe if they are even going to that place, they might not tell you that they are going to that place, but do you think somewhere humanity is lacking? 100%. Like take example of a time of that time, basically because of investments and all these background, I have sustainable and you can see little bit influential connections. So that time मैंने देखा कि लोग 5,000 का इंजेक्शन 2 लाख में बेच रहे थे. बिल्कुल. यस. सो ये ह्यूमैनिटी का जो ब्लैक साइड है, तो ये कोविड में लोगों को नजर आई और मैंने ये काफ़ी पास से देखी हुई है. Okay.
दैट टाइम माय एंटायर टीम वाज एक्टिव इन Right, दिस right. बिकॉज वी आर इन फिनटेक, तो हम लोग का तो मीटर चालू था, हाँ, वी आर गेटिंग मनी. right, सो मेरे पास ऑलमोस्ट 90-95 पीपल से, तो हम Right. लोग को कि हम लोग बैठ के क्या करेंगे, तो हम लोग लोगों की हेल्प करेंगे. right. सो वी आर दैट टाइम ऑल्सो रनिंग द एविएशन कंपनी, तो काफ़ी लोगों को हमने एयरलिफ्ट किया, Wow. काफ़ी लोगों को हमने हॉस्पिटल्स अवेलेबल करके दिया, Right. इंजेक्शन के लिए हमने काफ़ी लोगों को मदद की, किसी से कोई पैसा नहीं चार्ज किया. कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हमने खुद सामने वाले को पैसा दिया है Right. और उससे फ्री से इंजेक्शन लेके किसी को अलॉट कर दिया. Correct. सो 100% सिमरन, आई एम लाइक अलाइंग विथ योर थॉट कि ह्यूमैनिटी इज लैकिंग. Lacking somewhere. एंड अगर हम लोग कुछ अच्छे लोग भी इस पे सोचना चालू करेंगे, Right. तो We शायद all, ये चीज़ें 15-20 साल में इम्प्रूव होना चालू हो जाएगी. we all should work on Yes, it, yes. right? And let's not believe in the concept of, I mean, give and take is fine, but always be a giving person, Yes, yes, right? yes. Okay. My very first question to you, sir, is who is the one visionary that has inspired you the most? रतन टाटा, क्या बात है, ऑनरेबल रतन टाटा. क्या बात है, क्या, of course, he is one of my inspirations too. What emerging technology do you believe will have the biggest impact on our future? जनरेशन ये है. Okay, okay. If you could achieve one major goal in the next 5 years, what would it be? So the goal will be we want to become the India's biggest neobank. Okay. Yeah. Okay. And something related to that, my next question to you is if you had any of the supernatural power, Hmm. what do you aim to be, or what power do you aim to have in you? So definitely I want to travel in time machines, Okay. and I want to love to meet I am proud to meet Chhatrapati Shivaji Maharaj, क्या going behind the times. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Superb. What's the one piece of advice you would give to future leaders? Future. Leaders. So I already given the many advice. So कोई भी एक. keep your company, keep the people who are working with. Okay. Be selective. Okay, be selective. Okay. What do you think will be the next big visionary in your industry? So you're talking about the company? Yeah, anything you think that is going to be, a big or that's going to boom in your industry. Yeah, you definitely. think? So like I tell you, the neobank will be the next visionary in our industry. Okay, Yeah, okay. All right, sir. Thank you very much. That was a fun rapid fire round with you. And trust me, it's a proud moment to have you on our show, Visionary Voices. And sir, any last message you'd like to give to all our listeners? So definitely, I want to give the one. I'm not that much authority or that much big to give any advice to anyone, but I can tell you the something कि nowadays वो कलयुग वाला टाइम चला अभी नहीं है. हाँ. अगर जो भी आप यहाँ पे करोगे, Right. आपको यही फेस करना है. Correct. सो कुछ भी करने से पहला, किसी के साथ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लो. Right. ठीक है ना. ये साल में 24 में कुछ गड़बड़ करोगे तो 25 में आपको जेल जाना ही है. Correct. सो या जो भी आपको हिट लेना ही है. Right. Karma. कर्मा. Karma. Right. Okay, sir. Thank you very much. It was lovely chatting with you.